डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है पूरी तरह से रीडिंग पर बेस्ड है। आपको एक स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी है। ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आपको एक ऐसा मैसेज देकर जाएगी कि आप में से ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक बहुत ही मीनिंगफुल लेसन पता चलेगा, साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। मतलब दोनों चीजें आज के इस सेशन में आपको सीखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज भी और उसके साथ आपके इंग्लिश भी। तो दोनों चीजें आज के सेशन में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल्स। बहुत ही शानदार स्टोरी है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसके अंदर जो ग्रामेटिकल चीजें आ रही हैं उनको नोट डाउन करना, और जो अच्छी बातें हैं जिनको आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में उनको भी आप नोट करना। चलिए करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। So as I have told you today, we are going to read a very beautiful story, and you can see the title of the story is Precious Coin and Generosity. Guys, this story is very much beautiful, as I've already told you, and I guarantee you this story will definitely give you a very beautiful meaning in the end of the session. See, we are just reading it once, and after reading I will explain you every word grammatically. Mahatma Gandhi was on an expeditions to collect the funds from various cities and villages of Charkha Sangh. Okay, he went to several places and reached Orissa. He had organized a meeting in Orissa. First we are reading it, okay, and then after I will explain you. He requested to offer funds for the Sangh and gave a speech. After the speech, a very old woman with bent back, fatted clothing, white hair, dry and shrunk skin got up. She was trying to reach the stage and requested the volunteers to allow her to reach Gandhiji. However, the volunteers stopped her, yet she fought with them and reached Gandhiji. She touched the feet of Gandhiji. Then she took out a copper coin kept in her folds of sari and placed the copper coin at his feet. The old lady left the stage. Now the next, Gandhiji very carefully took the coin and placed it safely. Okay, adverb है. The in charge of Sangh asked Gandhiji, अब जो इंचार्ज थे गांधीजी, for the copper coins, but he refused to give it. I kept checks worth thousands of rupees for the Charkha Sangh, the in charge said laughingly. ये देखो, ये भी एडवर्ब आ गई एक. Yet you won't trust me with a copper coin. Gandhiji said, this copper coin is worth much more than those thousands. Gandhiji said, if a man has several lakhs and he gives away 1,000 or 2, it doesn't mean much. बहुत अच्छी बातें हैं भाई इसमें. Yes, the coin was just the only thing that the poor old lady possessed. She did not even have proper clothes and seems that she could not afford for good food. Still gave everything she had. It was the greatest offer ever made. That is why Mahatma Gandhi held the coin very preciously. So the moral of this story, we may have tons of wealth, but that doesn't make us generous. Offering helping hand when we have nothing or very little wealth makes it more valuable. So this is the actually what you can say very beautiful moral that we have read today. And here the one more line that that is spoken by Gandhiji is also very much beautiful. This copper coin is worth much more than those thousands. If a man has several lakhs and he gives away 1,000 or 2, it doesn't mean much. I'm going to speak in Hindi this particular lines कि ये जो कॉपर कॉइन है ये उन 1,000 रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है. क्यों है भाई? क्योंकि यदि एक आदमी के पास में लाखों रुपए है और उनमें से वो कुछ 1,000, 1,000, 2,000 देता है तो ये ज्यादा मायने नहीं रखता. लेकिन उस औरत के पास टोटल ही पूंजी एक कॉपर कॉइन था और वो भी उसने दे दिया. मतलब उसके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, उसके पास जितनी संपत्ति थी, शी डोनेटेड एवरीथिंग एंड दैट मैटर्स अ लॉट. ये बड़ी बात रखता है, ये बड़ी चीज है कि उसके पास टोटल प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा उसने दे दिया. एक व्यक्ति के पास लाखों रुपए और लाखों में से अगर उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट दिया है, राइट, और वहां पर आप ये देखें कि उसने कुछ अमाउंट दिया तो उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उतना अमाउंट बहुत जल्दी अर्न भी कर लेगा. लेकिन एक महिला जिसके पास
कुछ नहीं है, उसके पास उसकी पूरी प्रॉपर्टी एक कॉपर कॉइन थी और वो भी उसने गांधी जी को दे दी. सो दैट मैटर्स अ लॉट. सो वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग गाइज, और मैं चाहूंगा कि आप इस स्टोरी के पूरे नोट्स बनाएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से हर एक कंटेंट को लिखेंगे. जो चीज आपको समझ में नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग लगती है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे. सो आई विल एक्सप्लेन यू देयर. सो भाई पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग. देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी वॉज ऑन एन एक्सपेडिशन. अब भाई इतनी लाइन को पहले हम समझते हैं कि महात्मा गांधी जो थे किस पर थे, एक एक्सपेडिशन पर थे, एक अभियान पर थे, है ना, एक मूवमेंट पर थे. टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज, अलग अलग शहरों से फंड कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, टू कलेक्ट, टू इन्फिनिटिव लगा है यहां पर. टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस, अलग अलग गांवों से और शहरों से जो है फंड कलेक्ट कर रहे थे वो. फॉर चरखा संघ, किसके लिए, चरखा मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया था उस संघ के लिए उन्होंने तरह तरह की जो अलग अलग सिटीज थी उससे फंड कलेक्ट कर रहे थे वो. ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पर गए. एंड रीच्ड ओडिशा, और वो कहां पहुंचे, फाइनली ओडिशा पहुंचे. ही हैड ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग, वहां उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी. देखो पूरा कंटेंट जो है ना पास्ट में जा रहा है ना, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको मैक्सिमम सेंटेंस, पूरे सेंटेंस पास्ट के मिलेंगे ज्यादातर. ही हैड ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन ओडिशा, ओडिशा में उन्होंने एक मीटिंग करी. ही रिक्वेस्टेड, अब देखो ईडी लगा है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है. ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स फॉर द संघ एंड गेव स्पीच. उन्होंने क्या किया भाई, फंड्स के लिए एक संघ जो था उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया पैसे ऑफर करें. एंड गेव अ स्पीच, और एक भाषण दिया. आफ्टर द स्पीच, भाषण देने के बाद में, अ वेरी ओल्ड वुमेन, एक बहुत ही बूढ़ी महिला, विद बेंट बैक. बेंट का मतलब यहां है पास्ट पार्टिसिपल है आपका, जिसका मतलब है झुकी हुई, और बैक मतलब होती पीठ, जिसकी पीठ जो थी, कमर जो थी वो झुकी हुई थी. फैटेड क्लॉथिंग, जिसके कपड़े जो थे वो ठीक ठाक नहीं थे, लाइक कह सकते हैं फटे कपड़े पहने हुए थे, उसको अच्छे कपड़े नहीं थे फटे. व्हाइट हेयर, जिसके बाल सफेद थे. ड्राई एंड श्रंक स्किन, सूखी और सिकड़ी हुई उसकी स्किन थी. गॉट अप, खड़ी हुई. कौन खड़ी हुई, वो महिला वहां अपनी जगह से खड़ी हुई. शी वॉज ट्राइंग टू रीच, वो कोशिश कर रही थी पहुंचने की, द स्टेज, स्टेज पर वो जाने की कोशिश कर रही थी. एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, और उसने वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट किया टू अलाउ हर, उसको अलाउ करने के लिए, टू रीच गांधी जी, कि भैया उसको अलाउ करे गांधी जी तक पहुंचने के लिए. हाउएवर द वॉलंटियर्स, हालांकि जो वॉलंटियर्स थे, स्टॉप्ड हर, उन्होंने उसे रोका. येट शी फॉट विद देम, तो भाई वो उनके साथ में क्या करने लगी, फाइट करने लगी, झगड़ने लगी, नहीं मुझे जाना ही है. एंड रीच्ड गांधी जी, और फाइनली वो गांधी जी के पास पहुंच गई. शी टच द फीट ऑफ गांधी जी, उसने गांधी जी के पैर छुए. देन शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन कैप्ड इन हर फोल्ड्स ऑफ साड़ी, और फिर उसने एक टुक आउट, टेक आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को निकालना, इसकी सेकंड फॉर्म है टुक आउट, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन आउट. सो शी टुक आउट अ कॉपर कॉइन, उसने कॉपर कॉइन को निकाला. कैप्ड इन हर फोल्ड्स, जो रखा हुआ था कहां पर, फोल्ड्स ऑफ साड़ी, उसकी साड़ी के जो फोल्ड करके उसने रखा था उसमें रखा हुआ था. एंड प्लेस्ड द कॉपर कॉइन एट हिज फीट, और उनके पैरों में उसे प्लेस कर दिया, पैरों में उसे रख दिया. द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज, और इसके बाद वो ओल्ड लेडी उस स्टेज से चली गई. लेफ्ट द स्टेज का मतलब होता है स्टेज को छोड़ के चली गई, मतलब उस जगह से चली गई. अब क्या होता है, गांधी जी वेरी केयरफुली टुक द कॉइन, गांधी जी ने बहुत ही सावधानी से उस कॉइन को उठाया. एंड प्लेस्ड इट सेफली, और उसको बड़ी ही सेफली रख दिया. द इंचार्ज ऑफ द संघ, अब संघ का जो इंचार्ज है भाई, आज गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा फॉर द कॉपर कॉइन्स, कॉपर कॉइन के बारे में कि भाई वो कॉपर कॉइन मुझे दे दे. ये एस नहीं लगेगा, सिर्फ कॉपर कॉइन आएगा. बट ही रिफ्यूज टू गिव इट, लेकिन उन्होंने उसे देने से मना कर दिया. अब सोचो कॉपर कॉइन कितना कीमती होगा कि उसको मना कर दिया. तो वो क्या बोल रहे हैं हंसते हुए, आई कीप चेक्स वर्थ थाउजेंड ऑफ रुपीज फॉर द चरखा संघ. बोले मैं चरखा संघ के जो 1000 रुपीज के चेक से वो रखता हूं मैं, है ना. द इंचार्ज सेड लाफिंगली, भाई लाफिंगली मतलब हंसते हुए, ठीक है. इसमें लाफिंग में आईएनजी लगा है, तो ये एक एडवर्ब की तरह, पहले इसको हमने पास्ट पार्टिसिपल से, पहले हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव बनाया और फिर उसमें एलवाई लगाया. तो लाफिंगली मतलब हंसते हुए, जो कि मीनिंग दे रहा है. द इंचार्ज सेड लाफिंगली, इंचार्ज ने हंसते हुए कहा, Yet you won't trust me with a copper coin, और फिर भी तुम मुझसे कॉपर कॉइन के मामले में विश्वास नहीं कर रहे हो, जबकि मैं तो हजारों रुपए के चेक रखता हूं, राइट. और अब मुझसे जो है एक कॉपर कॉइन पर मतलब आपका ट्रस्ट नहीं रहा. गांधी जी सेड, अब गांधी जी ने जो बात कही वो, आई थिंक दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी दैट यू ऑल गाइज नीड टू नो, एंड सच अ ब्यूटीफुल
line spoken by Mahatma Gandhi, and I insist to all of you to get an actual meaning what Gandhi ji want to deliver with this line. So just read this beautiful line. I'm going to read this beautiful line. This copper coins is worth much more than those thousands. ये जो कॉपर कॉइन है इज वर्थ मच मोर, मतलब वर्थ है, ज्यादा उपयोगी है, मच मोर मतलब उससे कहीं ज्यादा उपयोगी, देन दोज ऑफ थाउजेंड, उन हजारों चेक्स जो या फिर हजारों रुपए के जो चेक है उनसे ज्यादा कीमती है ये कॉपर कॉइन. गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, और क्यों कहा? इफ अ मैन हैज सेवरल लैक्स, अगर एक आदमी के पास कुछ लाख रुपए है, एंड ही गिव अवे 1,000 or 2, तो उसने 1,000 या 2,000 रुपए उसमें से दे दिए, इट डजंट मीन मच, तो ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता. यस द कॉइन वॉज जस्ट ओनली थिंग्स दैट द पुअर ओल्ड वुमेन पोसेस्ड. और भाई ये जो कॉइन है वॉज द ओनली थिंग, यही सिर्फ उसके पास था. पोसेस्ड करना मतलब जिस चीज पर वो अपना अधिकार था, मतलब उसके पास ओवरऑल था क्या? सिर्फ एक कॉपर कॉइन ही था. यस द कॉइन वॉज जस्ट द ओनली थिंग, सिर्फ एक कॉइन एक ऐसी चीज थी दैट द ओल्ड वुमेन पोसेस्ड, जो ओल्ड वुमेन रखती थी या था उसके पास. शी डिड नॉट इवन हैव अ प्रॉपर क्लॉथ, उसके पास सही तरीके के ढंग के कपड़े भी नहीं थे. एंड सीम्ड दैट शी कुड नॉट अफोर्ड फॉर गुड फूड, और ऐसा लगता है उसको शरीर को देखकर कि लाइक वो अच्छे से कहीं खाना भी उसको ठीक से मिल नहीं पा रहा होगा. स्टिल गिव एवरीथिंग शी हैड, फिर उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था. इट वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफर एवर मेड. अभी तक जो जितने भी उपहार आए हैं या जो भी अभी तक ऑफर हमें मिले उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ऑफर यही है, राइट? जो कुछ है सब दे दिया. दैट इज वाई महात्मा गांधी हेल्ड द कॉइन वेरी प्रीशियसली, इसलिए महात्मा गांधी ने उस कॉइन को बड़े ही सावधानी से हेल्ड किया, बड़े ही सावधानी से अपने पास रखा, उसको संभाल के रखा, राइट? तो उस कॉइन की बहुत ज्यादा वैल्यू है. मोरल ऑफ द स्टोरी, वी मे हैव टन्स ऑफ वेल्थ बट दैट डजंट मेक अस जेनरस. हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो सकता है, टन्स ऑफ वेल्थ हो सकती है, बट वो हमें कभी भी जेनरस या उदार नहीं बना सकते. ऑफरिंग हेल्पिंग हैंड्स व्हेन वी हैव नथिंग आर वेरी लिटिल वेल्थ मेक इट मोर वैल्यूएबल. हमारे पास जब बहुत कम धन होता है या कुछ भी नहीं होता है फिर भी हम लोगों की मदद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है, राइट? उसकी अपने आप में एक अलग ही वैल्यू, उसकी अपने आप में एक अलग ही कीमत है. सो दिस इज सच अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी गाइज दैट वी हैव रेड टुडे, वेयर वी फाइंड दैट व्हेन यू आर जनरस, व्हेन यू आर रेडी टू हेल्प समवन, इट डजंट मैटर वेदर यू possessed a good wealth or not, you can help from any angle. And here we can see that how that old lady gave everything whatever she had. She possessed only a single coin, only a single copper coin that she had, and she just donated it, and it indicates that how generous she was, right? तो आप इस स्टोरी से काफी कुछ सीख सकते हैं. अब आपको करना क्या है? Just after reading this story, you guys have to speak this story in your own words. You have to practice it. You have to just give something meaningful. Like कि मैं इस story को अपने शब्दों में बोलूँगा. Once upon a time, Gandhi ji was on expenditure. Gandhi ji was on expedition, and he just went to Orissa. In a village of Orissa, he organized a meeting. Some people gathered over there. You know, तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में उसको बोलने की कोशिश करें. तो भाई उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, और आज वाकई में आपको इस स्टोरी को पढ़ के मजा आया. तो इस स्टोरी को बोलने की अपने शब्दों में कोशिश करें, और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख सके. अच्छा चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे.